Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 5, that is coal and petroleum. Right? So, first of all, we should know the meaning of both the words, that is coal and petroleum. Right? So, basically, we all know the meaning of word coal. Right? कोल का मतलब होता है कोयला, right? We all have seen the coal in our homes, right? And the petroleum means basically there are so many products that we get with the help of mines, that we get from the mines, right? All those products are said to be petroleum products, right? So we will study about the coal and petroleum products in detail in this chapter. Okay, so students, you have to read along with me. We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts, right? Students, we use so many materials, right? There are so many things that we use in our daily life, right? Some of them are given to us from the nature, while some of them are made by human beings, right? For example, we get our food from the plants, right? And that plants are the gift of God to us, right? They are the gift of nature, right? So there are some things that are gifted to us by God or by nature, and there are a few things that are made by human beings, right? For example, our clothes are made by us, right? So we have made them. So that are the man-made things, and the food that we eat, that is given to us by the plants, that is the gift of nature. So we get some things from the nature, while the other things are made by us, that is by human efforts, right? Now, um, can air, water and soil be exhausted by human activities? Students, what is the meaning of word exhausted? Exhausted का मतलब होता है खत्म होना, right? पूरी तरह से एक्सटिंग्विश हो जाना, पूरी तरह से खत्म हो जाना. सो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? क्या एयर, वाटर और सॉइल कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण? इसका मतलब अगर हम ऐसे ही वाटर का मिसयूज़ करते रहे तो क्या एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वाटर हमारी अर्थ पे से ख़त्म हो जाए या सॉइल हमारी अर्थ से ख़त्म हो जाए? सो you have already studied it in class 10th that all these things are extinguishable, right? अगर हमने इसी तरह से वाटर का मिसयूज करते रहे तो वाटर तो ख़त्म नहीं होगा, बट ड्रिंकिंग वाटर जो है, जो हमारे यूज़ का वाटर है, वो ख़त्म हो जाएगा, राइट? सिमिलरली जो सॉइल भी है, सॉइल भी अच्छी क्वालिटी की जो सॉइल है, अगर हम उसको इसी तरह से यूज़ करते रहे तो सॉइल भी एक पॉइंट पे क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी. सिमिलरली एयर भी एक पॉइंट पे आने के बाद बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाएगी, फिर हम उसको इनहेल नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इस तरह से जो सारे रिसोर्सेस हैं, भले ही वो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, बट एक पॉइंट पे आने के बाद वो एक्सटिंग्विश हो एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर हम उनको इसी तरह से मिसयूज़ करते रहे तो. सो in the light of the availability of various resources in nature, natural resources are broadly classified into two kinds, right? नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमको नेचर से मिले हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. कौन कौन से दो पार्ट्स? द फर्स्ट वन इज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टेबल का मतलब अभी मैंने आपको बताया, खत्म होना, राइट? तो इनएग्जॉस्टेबल का मतलब क्या? ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं, है ना? तो ऐसे रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. सो these resources are present in unlimited quantity in nature, right? जो जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं
वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो हम उनको कितना भी यूज़ करें वो रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, राइट। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सनलाइट, राइट। सनलाइट को हम कितना भी यूज़ कर लें, सनलाइट कभी ख़त्म होगी क्या, नहीं। तो सनलाइट इज एन इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। सिमिलरली एयर भी, मैंने आपको क्या बोला, एयर पॉल्यूट हो सकती है बट ख़त्म कभी होगी क्या, नहीं, नेवर। सो sunlight and air are some of the examples of inexhaustible natural resources. Okay, now the next one is exhaustible natural resources. What do we mean by exhaustible natural resources? The amount of these resources in nature is limited. ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास हैं, अगर हमने उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, पूरी तरह से एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, राइट, या एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेज को हमने क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में है, राइट। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मतलब अगर हमने इनको इसी तरह से यूज़ करते रहे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं बचेंगे, ये क्या होंगे, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और ऐसे रिसोर्सेज कौन से हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा, राइट। फॉरेस्ट, अगर हम इसी तरह से पेड़ों को काटते रहे, डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पे फॉरेस्ट नहीं बचेंगे, राइट। इसीलिए हमको डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ, स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो टाइगर है, नंबर ऑफ टाइगर्स बहुत कम हो गए हैं। डायनासोर्स पहले हुआ करते थे, अब तो वो है ही नहीं, एक्सटिंग्विश हो गए हैं, राइट। तो ऐसी बहुत सी स्पीशीज़ हैं जो धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही हैं। अगर हम उनको इसी तरह से ख़त्म करते गए, फॉरेस्ट ख़त्म करते गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वाइल्ड लाइफ बिल्कुल भी नहीं बचेगी, राइट। और उस केस में हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। द नेक्स्ट इज मिनरल्स। मिनरल्स में आपकी सारी चीज़ें, दैट इज़ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, राइट। अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो जो एनर्जी क्राइसिस की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। सिमिलरली कोल से भी हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है, तो कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम इनको इसी तरह से यूज़ करते रहे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, राइट। नाउ we will go to the next page. This is need not to be read, ठीक है, we can leave this, it is not so important, so we will read from here. In this chapter we will learn about some exhaustible natural resource. Okay, इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या, ऐसे रिसोर्सेस जो कि लिमिटेड हैं, है ना। अगर हमने उनको ज़्यादा यूज़ किया तो वो ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, राइट। एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ आवर चैप्टर कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे रिसोर्सेज हैं, एग्जॉस्टेबल, मतलब अगर हम इनको इसी तरह से यूज़ करते रहे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, राइट, एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। These were formed from the dead remains of living organisms. और ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, ये कैसे बनते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी कोई वाइल्ड एनिमल मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, वो वहीं पे जंगल में मर जाता है। अब बहुत सालों तक उस पे जब मिट्टी की एक लेयर जमती जाती है, राइट, धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी बॉडी पर मिट्टी की एक लेयर जमती जाएगी। और जब मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब वो डेड जो उस एनिमल की डेड बॉडी पर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब बहुत सारी लेयर्स जम जाती हैं, तो वो जो उसकी जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स का मतलब क्या, उसकी जो बची हुई हड्डियां होती हैं,
उन हड्डियों से बेसिकली हमको क्या मिलता है, एक तरह का फ्यूल। और वो फ्यूल कौन सा होता है, उसी फ्यूल से हम क्या बनाते हैं, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, डीजल, ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको बेसिकली किससे मिलती हैं, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स के फॉसिल्स से, राइट। तो इसलिए हम इन चीज़ों को बोलते हैं, इन फ्यूल्स को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, राइट, बिकॉज these fuels we get from the fossils of the animals and plants. That's why it is called as fossil fuels. Okay, now the first fossil fuel that we are going to study about is coal. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोल के बारे में. As in the beginning of the chapter only I have told you, कोल का मतलब क्या होता है, कोयला, राइट. कोल मीन्स कोयला. आपने सभी ने देखा होगा कोल को, है ना. हियर यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दे रखा है कोल. सो यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. इट इज़ अ हार्ड एज स्टोन. जो कोयला होता है वो बहुत हार्ड होता है, राइट. और स्टोन से यहाँ पे कोयले को कंपेयर किया है. स्टोन मीन्स पत्थर. तो जो कोयला होता है इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन, मतलब पत्थर जितना हार्ड होता है. और इट इज़ ब्लैक इन कलर. कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, राइट. आप सभी को पता ही है, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड. कोल एक ऐसा फ्यूल है जो कि फूड बनाने में भी काम आता है ना. पहले के टाइम पे कोल को जलाकर उस पर खाना बनाया जाता था, राइट. यू माइट हैव हर्ड इट फ्रॉम योर मदर्स और फ्रॉम योर ग्रैंड मदर्स, राइट. जो पहले LPG सिलेंडर्स तो नहीं हुआ करते थे हर जगह, तो कोल पर ही खाना बनाया जाता था. तो कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल दैट इज़ यूज्ड टू कुक फूड. अर्लियर it was used in railway engines also, right. You might have seen in in so many movies, right. तो बहुत सी हिंदी मूवीज हुए हैं जिनमें कोल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है ट्रेन में, राइट, टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, है ना. आपको पता होगा कि इंजन में कोयला डाला जाता है ताकि स्टीम प्रोड्यूस हो. स्टीम मतलब भाप, और उस स्टीम से वो जो इंजन है वो रन होता है ना. तो जो ट्रेन चलती है वो कैसे चलती है, स्टीम से चलती है. और वो स्टीम किससे बनती है, कोल से बनती है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और ये जो कोल होता है वो किस में भी यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में. थर्मल पावर प्लांट्स का मतलब बेसिकली थर्मल पावर प्लांट्स का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होती हैं, राइट. तो कोयले से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं. हमारी ट्रेन्स कोयलों से चलती है और कोयले से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. कोल इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूल, ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. और कोल को हम बहुत सी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल. मतलब कोयले से बहुत सारी मशीन्स भी चलाई जा सकती हैं, राइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्टोरी ऑफ कोल. एक्चुअल में कोल की डिस्कवरी कैसे हुई, हमको कैसे पता चला कि ये जो कोल है वो इतना यूजफुल है ना. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पैराग्राफ. So students, you have to read along with me. About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas, right? About 300 साल पहले की बात है, 300 million years ago की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा पहले की, right? The earth had dense forest in low-lying wetland areas. अर्थ पे बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे. डेंस मतलब घने जंगल थे, राइट. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. क्या हुआ, बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, है ना. तो इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण क्या हुआ, ये जो डेंस फॉरेस्ट थे वो सॉइल के अंदर दब गए, राइट. बरीड मतलब दब जाना, है ना. सॉइल के अंदर बहुत सालों तक दबे रहे ये सारे फॉरेस्ट. उससे क्या हुआ, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. और जैसे जैसे उन पे सॉइल डिपॉजिट होती गई वैसे वैसे वो कंप्रेस होते गए और ज़्यादा दबते गए, राइट.
जो सॉइल की लेयर एक के ऊपर एक चढ़ती गई और वो धीरे धीरे करके दब गए, राइट। दे द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सेंक डीपर एंड डीपर, और जैसे जैसे वो अंदर 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 दबते गए तो वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता गया। तो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और जब वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, प्रेशर क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि उस पर बहुत सारी सॉइल की एयर लेयर डिपॉजिट हो गई, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया ऑब्वियसली। तो उसके कारण क्या हुआ, ये जो डेड प्लांट्स थे गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। धीरे धीरे ये जो डेड प्लांट्स थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल मतलब कोयला, राइट, कोयले में कन्वर्ट हो गए। सो एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, चूंकि आपको पता है स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू दैट जो कोल होता है उसमें बहुत सारा कार्बन होता है, ठीक है। कोल में बहुत सारा कार्बन होता है। कार्बन एक तरह का एलिमेंट है, राइट। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन। और क्या हुआ, ये जो डेंस फॉरेस्ट थे उसमें जो वाइल्ड लाइफ थी वो सब सॉइल के अंदर जब इतने सालों तक दबी रही तो उनके फॉसिल्स से, उनके जो डेड रिमेनिंग थे उनसे क्या बन गया, कोल बन गया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें कि डेड वेजिटेशन से कोल बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। ओके, सिंस इट was formed from the remains of the vegetation, coal is also called as fossil fuel। और चूंकि ये कोल जो है वो डेड रिमेन से बनता है ना, जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स होते हैं उनसे ही बनता है कोल, है ना। तो ये जो कोल है, ये जो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल, राइट। अ कोल माइन इज शोन इन द फिगर। नेक्स्ट पेज पर आपको एक कोल माइन का फोटो दे रखा है। आई विल जस्ट शो इट टू यू। या स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, ये जो यहाँ पे आपको अभी क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, व्हेन यू विल सी इट इन योर टेक्स्ट बुक यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व इट, कि ये जो है कोल माइंस ऐसी हुआ करती थी पहले, राइट। नाउ when heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide। जब जब कोल को बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में, तो कोल बर्न होके हमको कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैस, राइट। बेसिकली जो कोल होता है माइन के अंदर से, वो हमको ऐसा का ऐसा प्योर तो मिल नहीं जाएगा, राइट। हमको उसको बहुत सारी उस पर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। और वो काम कैसे होता है, इंडस्ट्री में होता है, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि हमको खदान में से सोना मिलता है, राइट, बट वो सोना ऐसा तो नहीं है ना कि माइंस में बस पड़ा हुआ है, हमने खोदा और निकाल लिया। नो, वी हैव टू प्रोसेस इट, है ना, हमको उस पर बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। तो वैसे ही कोल पे भी हमको बहुत सारी प्रोसेस करके हम उससे क्या क्या बना सकते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि ये सारी चीजें होती क्या हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कोक। सो स्टूडेंट्स रीड अलॉन्ग विथ मी। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये जो कोक होता है वो टफ होता है, टफ मतलब मजबूत, पोरस, पोरस मतलब थोड़ा सा खोखला भी होता है, और ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो कोक होता है इट इज ऑलमोस्ट प्योर, मतलब एग्जैक्ट हम प्योर नहीं बोल सकते हैं, बट फिर भी ये काफी प्योर होता है। कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक को हम कहाँ यूज करते हैं, कोक का हम यूज करते हैं स्टील को बनाने में, और बहुत सारे मेटल्स, अलग अलग तरह के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। एक्सट्रैक्ट करना मतलब मिनरल्स में से मेटल्स को निकालना। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि गोल्ड ऐसे ही माइंस में तो नहीं रखा हुआ है, राइट, हमको उस पर बहुत सारी प्रोसेसिंग करके और फिर उसको गोल्ड बनाना पड़ता है, राइट। तो इसका मतलब क्या कि हमको मिनरल्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करना मतलब निकालना। तो कोक का यूज बहुत सारे मिनरल्स में से मेटल्स को निकाल एक्सट्रैक्शन के लिए भी किया जाता है।
The next one is coal tar. What do we mean by coal tar? Students, read along with me. It is a black thick liquid with an unpleasant smell. कोल तार जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है और एक थिक लिक्विड होता है. थिक मतलब बहुत ज़्यादा गहरा, है ना, बहुत ज़्यादा घना, थिक लिक्विड होता है. जैसे कि जेल होता है ना आपका, उस काइंड ऑफ लाइक जो हमारा ऑयल होता है, काइंड ऑफ लाइक दैट. तो एक थिक लिक्विड, ब्लैक कलर का लिक्विड जिसकी एक अनप्लीजेंट स्मेल. अनप्लीजेंट मतलब ऐसी स्मेल जो हमको पसंद नहीं आती है, राइट, खराब सी स्मेल होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज. और ये जो कोलतार होता है उसमें कम से कम ऐसे 200 सब्सटेंसेस होते हैं अलग अलग तरह के, राइट. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार are used as starting materials for manufacturing various substances used in everyday life and in industry. और ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं कोलतार के, कोलतार से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं. और ये जो चीज़ें होती हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल्स में यूज़ आती हैं, मटेरियल्स को स्टार्ट करने में यूज़ में आती हैं, राइट. और इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? हमारी एवरीडे लाइफ में, इंडस्ट्रीज़ में, राइट. कोलतार से जो चीज़ें बनती हैं उनका यूज़ हमारी एवरीडे लाइफ में भी होता है और इंडस्ट्रीज़ में भी होता है. जैसे सिंथेटिक डाइज बनाने में, ड्रग्स, कुछ तरह के ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स मतलब जो विस्फोट होते हैं वो बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में भी कोलतार यूज़ होता है, प्लास्टिक पेंट्स बनाने में भी कोलतार का यूज़ होता है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में भी कोलतार यूज़ होता है, रूफिंग मटेरियल्स एट्सेट्रा. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from coal tar. Naphthalene balls कुछ तरह की बॉल्स होती हैं जो कि इंसेक्ट्स को दूर भगाने के काम में आती हैं. तो हम कोलतार का ये भी एक यूज़ होता है कि हमको उससे नैफ्थलीन बॉल बना सकते हैं, राइट. These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. आपको पता होगा कि जब रोड बनती हैं तो उसमें भी वो जो ब्लैक कलर का मटेरियल डलता है ना, बेसिकली दैट इज कोल तार. पहले रोड बनाते थे तो कोल तार डालते थे, बट अब हम क्या यूज़ करते हैं? बिटुमिन. बिटुमिन भी एक तरह का सब्सटेंस होता है कार्बन का ही, तो हम आजकल उसको यूज़ करते हैं रोड बनाते समय. नाउ द लास्ट वन इज कोल गैस. Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. कोल से जब कोक बनाते हैं हम, है ना, कोल हमने देखा रॉ रहता है ना, कच्चा रहता है, और उसको प्रोसेसिंग करके हम क्या क्या बना रहे हैं? कोक बना रहे हैं, कोलतार बना रहे हैं, और अब कोल गैस भी बना रहे हैं. तो कोल से जब हम कोक बनाते हैं, it is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants, right. और ये जो कोल गैस होती है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? उसका यूज़ होता है एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स. और ऐसी इंडस्ट्री जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास में होती हैं, वहाँ पे हम एज अ फ्यूल इस कोल गैस को यूज़ करते हैं. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, वो पॉइंट पे हम पढ़ेंगे. कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन. कोल गैस को स्ट्रीट लाइट्स आपको पता ही होंगी, राइट. कोल गैस को एज अ स्ट्रीट लाइट यूज़ किया गया था सबसे पहले कब? लंदन में 1810 में, एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820. सबसे पहले लंदन में और फिर न्यूयॉर्क में 1810 और 1820 में. Nowadays it is used as a source for heat rather than light. और आजकल कोल को हम सबसे ज़्यादा हीट के लिए यूज़ करते हैं rather than लाइट, राइट. पहले हमने उसको एज अ स्ट्रीट लाइट यूज़ किया, बट आजकल हम उसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं rather than using it to get light. Okay, so that's all for today's session, students. The further topics we will study in the next lectures. Okay, thank you.